Jai Bharat. So first of all, I extend my sincere gratitude to Professor R.S. Sengar sir, Director. Prior to that, I worked for more than 4 years as Assistant Registrar at IIT Bhopal, then 5 years, 3 months experience as Training and Placement Officer at CCT, that is Government Engineering College under Punjab University. Then 3 years teaching experience as Assistant Professor at Reputed Engineering College from Management Institute. My key skills are building and maintaining corporate relations, as corporate licensing is my core area. Then student counseling. Apart from training and placement, my purpose is to guide the students on life skills, career counseling and guidance, motivational skills, more than 40 years of experience of interacting with students only. So campus equipment, why we are meeting today at this place? Our purpose is campus equipment. It can be the on-campus equipment, it can be the off-campus. It's not confined to कि आपको just private job में जाना है. Campus placement means that you need to prepare yourself for your career prospects. Now let's come on what do you mean by placement? क्या होती है placement? Just to grab a job. Many students are doing courses in agriculture and different fields. So one is just to grab a job, just to get the degree of agriculture sciences or agriculture engineering, and then grab a job. Either it can be a banking job, it can be any government job, it can be UPSC, it can be staff service commission job. Next is getting a high job. So it depends on कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए या आपको उस फील्ड की जॉब चाहिए. Like if I talk about the IIT students, now what is the difference between IIT and IIT student and you people? कोई difference है? Why you are trying? There is no difference. देखो कुछ matters एक होता है कि जस्ट एक सिंगल एग्जाम होता है JEE मेंस जो either the student can enter into IT system or he is out of the system. बाकी तो वही स्टूडेंट होता है, वही बच्चा होता है. You can also get that typing job. Then getting a job in the field of interest or specialization. If you are doing specialization in agriculture engineering or biotechnology or veterinary sciences, in case you are going into that particular field of your interest, specialization. Then apart from this, there can be other options. That can be entrepreneurship. All of you have heard about the Adani Group, Reliance Group, Tata Sons, and many big houses. So do you think by doing job you can attain such, you can establish such an empire like the Adanis or Ambanis? You need to start. अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? Do you think कि पैसा चाहिए? Anyone? New idea or innovation that require. Yes, good. Apart from this, Second thing is risk. risk. That is the most important. You must have a risk-taking capability. Because एक government job करना that is one of the easiest tasks. ठीक है? We are unable to take the risk. The entrepreneurs are those people who you take the risk. अपना पैसा लगाना, उसके बाद अपना पूरा करियर उस पे लगाना. There can be failures, there can be success. But you need to be positive on that. अगर आप पहले नहीं सोचोगे कि देखो फर्स्ट डे कोई भी आप फैक्ट्री सेटअप करते हो या शोरूम भी खोलते हो, कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं कि डे वन से आपको प्रॉफिट्स और इनकम आना शुरू हो जाएगा. उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है. For that you need to keep patience and stability, and you must have a risk-taking capability. Next slide. Now, what are your expectations? Expectations of an organization from a prospective employee. Being a candidate, what are the expectations of the
any organization or corporate house, those who are recruiting you people. First is right attitude. You should be learn oriented. They are not expecting that you are expert in your field. इस डिग्री में आपको वो they are not expecting कि आप expert होगे इसमें. But at least yes, basic knowledge, the way knowledge आपको होनी चाहिए. Rest they can train on you people in case you are your right attitude and you are willing to learn something. सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपको. Then ability to work in a team. Teamwork is most important because you need to work in a team. आपको वहाँ पे individual goal ही attain करने हैं अपने. आपको एक team में काम करना है. That is must for the success of an organization. Then of course good communication skills. Communication skills it doesn't mean that you need to communicate on English or in one particular language. Language is not a barrier for a good communication skill. It can be any language. Then of course long-term association. If someone is recruiting you, they are expecting that even if IIT has recruited me, it's not that after 6 months or 1 year I should start searching a new job. Yes, I am getting opportunities from the BITS and other prestigious institutes. But at least wherever you have started your job, you must spend 2 to 3 years time. Otherwise, उससे क्या होता है आपका resume खराब होता है. Then candidates expectations. अब आपकी क्या expectations रहती हैं? पहले तो आपको होता है कि good salary package. Then good work environment. But apart from good salary से अच्छी salary से पगार से अच्छा आपको environment चाहिए. Why people आपकी first preference government job की क्यों रहती है? किसकी थी first preference government job? Please raise your hands. क्या रीजन होता है कि सैलरी अच्छी होती है या स्टेबिलिटी होती है? And also you are looking for work environment. Then career growth prospects. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू में जाते हो तो you must focus on कि आपका आगे beyond 5 years where you see yourself. Then course long term association. As a candidate also आपका होता है कि you should work for a long time with the organization. Next slide please. Next slide. So the topics I am covering today: resume writing, interview skills, group discussion, and communication skills. Next. Before doing preparation of CV and other things, you need to do your analysis. That is SWOT analysis. You need to focus on your strengths, weaknesses, opportunities, threats. अब आपकी strengths क्या हो सकती हैं? It's not कि आपने एग्रीकल्चर का कोर्स कर लिया है, वेटरनरी का कोर्स कर लिया है, you are expertise in that field. फिर भी उसमें क्या होता है कि some people are good in marketing skills, some people are research oriented, आपका जैसे टीचिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है. Then weaknesses क्या हो सकती हैं? You may be lacking in the domain knowledge. 4 साल की डिग्री के बाद बेसिक्स क्लियर नहीं है. The need to focus on your weaknesses. You need to overcome your weaknesses. Then aptitude skills, time management skills. Time management क्या होता है? इसमें आपको ये लिखना है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है. जैसे अगर डे स्टार्ट होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? You need to focus on कि किस चीज पे आपको एम्फेसाइज करना है. Then opportunities, like you the previous presentation you have seen, there are a lot of opportunities in the field of agriculture, like the artificial intelligence, machine learning, demanding new sectors, agriculture, veterinary research, agri-marketing, farm work, manufacturing equipment. These are the traditional opportunities. Apart from this, you need to update yourself with the AI and other techniques. There are the opportunities in the field of analyst profile, for the AI profile, for the machine learning profile. Then threats. There are threats, ups and downs. Economy में it's a part of economy. इकोनॉमी में स्लोडाउन चलता रहता है. You might have heard the news about the slowdown in the US economy, but उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पे सबसे कम हुआ है. Then retention,
companies are struggling to retain the best talent, then high CTC expectations. Every year आपकी CTC expectations बढ़ती जाती है, but CTC होता क्या है? हमारी जैसे कंपनी आती है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वो उसका पैकेज होता है 51 lakhs। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं ना, उसको 51 को 12 से डिवाइड कर देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 51 को 12 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 लाख महीने का हो गया। आपको लगता है कि इतना मिलता है आपको? जब किसी को 25-30 लाख का पैकेज मिलता है, कंपनी बोल देती है, तो मिलता है, इतना नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, सीटीसी की गेम क्या होती है, अगर एक लेट्स टॉक अबाउट सीटीसी में गवर्नमेंट अप्लाई, एक चलो प्रोफेसर का ले लेते हैं सीटीसी अगर प्रोफेसर का काउंट करें ऊपर आ जाता है, पर एक्चुअली मिलता नहीं है। कंपनी लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेती है कि आफ्टर 3 इयर्स एक यू आर, आप 3 साल कंपनी में लगाते हो, तो उसके बाद एक रिटेंशन बोनस दिया जाता है, आपको स्टॉक ऑप्शन दी जाती है, आपको 5 लाख के स्टॉक ऑप्शन दे दिए। वो स्टॉक डिपेंड करता है कि उस दिन स्टॉक की शेयर की, इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, बट 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे। सो इसको मिला के दे यूज्ड टू क्रिएट द ग्राफ ऑफ दिस सीटीसी के कॉस्ट टू कंपनी इसको बोलते हैं। आपको आने जाने के लिए कैब प्रोवाइड कर दी कंपनी ने, आपको लंच कूपन्स, वो सारा कॉस्ट इसमें ऐड हो जाता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस का, ऑल दीस थिंग्स आर पार्ट ऑफ द सीटीसी। देन चेंजिंग टेक्नोलॉजी, एआई से कुछ लोगों को लगता है कि एआई से जॉब्स कम हो जाएंगी, जब हमारी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। एआई से इट्स ए चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी आल्सो। आपको क्या करना है, इस चैलेंज को, यू नीड टू कन्वर्ट द चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू अपडेट योर स्किल्स, अपनी स्किल्स बढ़ाते जाओ। लाइक सिंह साहब ने पहले कहा है कि अगर आपको आप अपने आप को अपडेट रखोगे, then you can survive in the market, otherwise you will be out unless or until you are in the government sector। even government sector में भी easy नहीं है task। do you think कि सब government sector में 9 to 5 चलता है? my timings are reporting to office at around 9:30, but शाम का मेरा टाइम नहीं है। yesterday also I got free at around 8:30, ठीक है, तो इट्स नॉट के 9 to 5 वाला सिस्टम चला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ लेट्स कम ऑन द रिज्यूमे। और रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। रिज्यूमे इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए रिक्रूटर एंड ए कैंडिडेट। इट हैज अ पावर टू कैच एन आई ऑफ रिक्रूटर विद इन फ्यू सेकंड्स। देखो, एक कंपनी के पास, एक एचआर के पास 50-100 सीवीज आते हैं, रिज्यूमेस आते हैं, तो अगर वो एक रिज्यूमे पे 5-10 मिनट या 10 मिनट भी लगाने लग जाए तो इट्स टीडीएस जॉब। आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि विद इन ए स्पैन ऑफ फ्यू सेकंड्स एन एचआर कैन एनालाइज वेदर योर सीवी शुड बी कंसीडर्ड और नॉट। Especially if you are a fresher, the prospect of getting shortlisted for a job is directly dependent on your resume। अब फ्रेशर के लिए क्या होता है, कंपनी के पास टाइम नहीं होता कि आप सर्टिफिकेट चेक करें। सर्टिफिकेट चेकिंग तो बाद में होती है ना आफ्टर सिलेक्शन, ताकि ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके। फर्स्ट इंप्रेशन तो प्राइवेट सेक्टर में यू आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटीज, देन रिज्यूमे होता है। गवर्नमेंट का भी एक फॉर्म होता है ना, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, 2 पेज और 3 पेज का फॉर्म, ठीक है, ताकि उसी में पता चल जाए कि वेदर यू क्वालिफाई फॉर दैट जॉब, वेदर यू आर मीटिंग द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब। सो रिज्यूमे एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यू एंड ए prospective recruiter। Then showcase your qualifications। A resume allow you to showcase your qualifications, skills of education qualifications, skills जो है आपकी इंटर्नशिप की हुई है, then experiences। Next slide। Then let's start the resume building। Structure of resume। स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे में एक हेडिंग होता है, सबसे ऊपर क्या डालोगे?
सबसे ऊपर आप डालोगे अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल। आज के टाइम में लिंक्डइन प्रोफाइल दैट शुड बी मस्ट फॉर द एवरी कैंडिडेट, दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्टिव रिक्रूटर्स। देखो प्लेसमेंट सेल के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे पे फोकस किया जा सके। सो अपार्ट फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द training and placement office of a university or an institute, so you can interact better in a better way. Directly you can interact on LinkedIn with the prospective companies or HRs. Many people are available on the LinkedIn profile. Then there are different headings. Personal information, name आपका full name होना चाहिए, nickname नहीं होना चाहिए. Secondly, email ID आप mention करते हो ना, it should be professional. ऐसा नहीं कि गोल्ड स्टार या लकी स्टार करके कुछ लाइक दैट, ठीक है, रॉकिंग स्टार करके, दिस अनप्रोफेशनल ऐसा नहीं चाहिए। आई एक्सेप्ट कि जैसे आप जीमेल पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हो ना, जीमेल इट कैन बी रेडिट मेल, इट कैन बी याहू, एनी यू लाइक, तो उसमें होता है कि जैसे किसी का नाम है सपोज कर लो आकाश, तो उसमें आकाश से या कुछ करके, तो समटाइम्स द डोमेन नेम नॉट अवेलेबल, तो उसमें 1 2 करके यू कैन हैव द ऑप्शन, बट प्रेफरेबली उसमें आपका नाम होना चाहिए। देन रोल नंबर इज ऑप्शनल। अगर आप कैंपस के थ्रू रिज्यूमे अपना भेजते हो देन यू कैन मेंशन द रोल नंबर, बट इट्स ऑप्शनल। और कैंपस के थ्रू ये रिज्यूमे जाता है, उसमें इंस्टीट्यूट का नेम एंड लोगो ऊपर होना चाहिए साइड पे। आई विल शो यू द सैंपल रिज्यूमे नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। Then contact number आपका that is must. Then education, recent and relevant educations. जो relevant degrees हैं, unnecessary courses किए हुए हैं that are not relevant, that need not be mentioned. It must include the institute, कहाँ से डिग्री की है आपने, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी ब्रांच है, क्या CGPA या परसेंटेज है आपकी। Then for PG students or PhD candidates, school name that are not required. Experience, although you are freshers, in case anyone is experienced, then it should be reverse chronological order. Please note that it should be reverse chronological order. जो आपका recent experience है, उससे show उससे start करोगे. Like currently presently working as a training and placement officer at IIT Jodhpur. Then उसके बाद आप जो previous experience है, you can add up. Next slide. Other headings, उसमें आपने इंटर्नशिप किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, अपनी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं ना, उसको मेंशन करना मत भूलिए, क्योंकि इंटर्नशिप में इट एक्ट्स एज योर एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर। क्योंकि फ्रेशर आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो होता नहीं, 2 मंथ्स से 6 मंथ्स का आपने इंटर्नशिप की है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट किया है, यू नीड टू मेंशन दैट। देन कुछ वर्कशॉप्स, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए आपने, यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ वर्कशॉप, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन, स्किल गेन। आपकी जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो एग्रीकल्चर की या वेटरनरी की आपने अटेंड की है, यू कैन मेंशन दैट के इस यूनिवर्सिटी में हमने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ये सीखा आपने। नेक्स्ट स्लाइड। देन फॉर्मेट दैट इज इंपॉर्टेंट, that tailored to match the job requirements. ऐसा नहीं कि हर जगह आपका एक ही रिज्यूमे चल जाएगा, it can be company specific. अगर रिसर्च में जा रहे हो then it can be like that. अगर इंडस्ट्री में जा रहे हो, इंडस्ट्री में it can be the agriculture manufacturing products or it can be the insecticide or pesticide manufacturing units. So you can tailor your job resume accordingly. Technical skills में you can add your languages. Apart from programming languages, you can add the languages, other courses, tools, technologies you have learned. Then achievements. कोई आपने अवार्ड लिए हैं, पब्लिकेशंस किए हैं, अच्छा अचीवमेंट्स में क्या करना है, आपने ना क्वांटिफाई करना है उसको। क्वांटिफाई कैसे करना है कि ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेशन किया आपने, पार्टिसिपेशन में जैसे सपोज करो कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसमें अटेंडेड दैट सो एंड सो कॉन्फ्रेंसेस इन विच मोर देन 500 पीपल पार्टिसिपेटेड, लाइक दैट। नेक्स्ट।
करियर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? To steer a challenging role in industry field, leveraging my technical expertise gained through an intensive curriculum at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology. You need to mention your career goal. आपका goal क्या है? मेन है क्या जल्दी आपको जानी? Just give me another 15-20 minutes. उसके बाद कुछ entertainment भी करेंगे. Don't worry about that. I know कि आप 2 घंटे के लेक्चर से we are fed up. That is होगी सारे स्टूडेंट. Next slide. Then customize your resume. Customize for each job. जैसे मैंने कहा कि it should be, उसको resume should be tailor made according to the job requirements. आजकल एक सिस्टम चल रहा है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. Most of companies they are using AI techniques to शॉर्टलिस्ट का रिज्यूमेस. उसमें क्या होता है कि कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं? होने चाहिए आपकी जो एक्सपर्टीज है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स ऐड कर दो ताकि उनको आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में इजी हो रहे. देन हाईलाइट द रेलेवेंट स्किल्स. अच्छा, रेलेवेंट स्किल्स में अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स यू नीड टू मेंशन योर सॉफ्ट स्किल्स. और सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट बोलना ही सॉफ्ट स्किल नहीं होती. It can be communication skills, it can be teamwork, it can be problem solving skills. Because companies क्या देखती हैं? You should be a problem solver, not a problem creator. आपके पास solution होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो difficult है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं बोलना है. उसका solution निकालो. हर चीज का solution होता है. Then showcase your experience. आपने कहीं वॉलंटियरली एक्ट किया है किसी एनजीओ के साथ. आपका जो आज का कोऑर्डिनेशन टीम है, दैट इज दोस आर वॉलंटियर्स. यू कैन ऐड दीस इन योर वर्क दिस रिज्यूमे. नेक्स्ट प्लीज. अब साइज क्या रखना है उसका? जनरली जो फॉन्ट होना चाहिए आपका एरियल या कैलिग्राफी होना चाहिए. उसमें ये नहीं कि जो अभी पहले चलता है ना टाइम्स रोमन था आपने, so now you should add Arial or you can add Arial or calligraphy. तो headings का जो font size ideally it should be 14 to 16 points. Sub headings इसका size 11 to 12. Then body text जो other है that it can be 10 to 12 points. Then जैसे मैंने previously बोला है कि quantify your achievements. Wherever possible, add numbers or specific details to quantify your achievements. For example, help to increase wheat production by 10%. आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया है समर ट्रेनिंग में, 2 months ट्रेनिंग में या 6 months इंटर्नशिप में, जिसमें क्या आपने हेल्प किया wheat production 10% improve हो गया. ऐसा नहीं कि increase the help to increase the wheat production or help to reduce the impact of insecticides और pesticides. तो उसका एक रेशो होना चाहिए. जैसे वीट की प्रोडक्शन है ना कि कॉरे के प्रोडक्शन करते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका? you have helped to improve the increase the production. Next, proofread carefully. Once you have prepared your resume, उसके बाद उसको you need to, जैसे पहले बोलते थे ना कि एग्जाम के बाद भी इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए. जो आंसर शीट आपकी 5 मिनट उसको लगा लो, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है. बहुत से केसेस क्या होता है ना, अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनाई है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट द फॉल्ट, तो किसी को दूसरे को दिखा दो. जब आप उसको 2-3 बार प्रूफ रीडिंग कर लो, बट यू आर राइटिंग इन द रिज्यूमे. देन डिजाइन मैटर्स. उसकी प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए. टेम्पलेट, देयर आर टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑन ऑनलाइन साइट्स आल्सो. यू कैन create the use the standard template. Then including cover letter. अब cover letter कब में यूज होता है? सपोज कर लो आपको किसी कंपनी ने बोला है कि प्लीज शेयर योर सीवी और दिस ईमेल आईडी. जब ईमेल आईडी पे रिज्यूमे शेयर करते हो ना, इट्स नॉट कि आप जैसे अटैचमेंट लगा के भेज दी इसको रिज्यूमे. तो उसमें क्या करना है आपने? एक कवर लेटर लगा के भेजो.
जैसे कवर लेटर क्या हो सकता है, कंटेंट टू दिस पर्सन सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस जब रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर these are in reference to the job requirement as mentioned in the advertisement on LinkedIn or Times of India. Please find like that. तो एक कवर लेटर ना 4-5 लाइन्स का यू मस्ट ऐड, और कवर लेटर भी आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर कैंपस के थ्रू रिज्यूमे करेक्ट करे जाते हैं तो उसमें कवर लेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है इसमें रोल्स, जब हॉबीज या इंटरेस्ट। अब हॉबीज ऐसे ऐड करो, ऐसा नहीं कि साइकिलिंग करता हूं मैं, जब आप कहते हो कि सिंगिंग करता हूं मैं, अब सिंगिंग में क्वेश्चन आ गया कि कौन सी करते हो भाई, वोकल, क्लासिकल वोकल या दूसरी कौन सी करते हो? इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? हारमोनियम बजाते हो, तबला बजाते हो, तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग। सिमिलरली अगर आप मेंशन करते हो कि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो उससे पता चलता है कि आपका कन्वे होता है कि यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। अब स्पोर्ट्स को गेम खेलते हो, मैक्सिमम पीपल यूज्ड टू मेंशन हियर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इज माय हॉबी। क्रिकेट का उसको नॉलेज होना चाहिए। They used to ask the question अभी करंट पे क्या चल रहा है, T20 किसने जीता है, who is the captain of that particular team। स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्समैन को उससे पता चलता है कि आपको टीम में प्ले करना आता है। नेक्स्ट इज वॉलंटियर वर्क। अगर वॉलंटियर ऐसे वॉलंटियर वर्क करते हो, देखो 3 लोग बैठे हैं आपके आगे, ठीक है, दे आर डूइंग द वॉलंटियर जॉब, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सुबह से शाम तक शायद लगे होंगे, कोई ऑनरेरियम तो नहीं मिलेगा हमको, बट दे पीपल आर वर्किंग। सिमिलरली यू कैन एक्ट एज ए वॉलंटियर इन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज। देन पब्लिक स्पीकिंग, उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। इफ यू आर ए गुड स्पीकर, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आती है। प्लीज स्टे फॉर अदर 10-15 मिनट्स। Next slide, please. So this is a sample resume. There are 2-3 formats. देखो एक साइड पे, one side he has mentioned his work ex, and parallelly on right side he has mentioned his education qualifications, skills, coursework, achievements, certifications. तो एक्सपीरियंस के नीचे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स अगर करी है कहीं पे, देन ऊपर आ गया नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। उससे क्या होता है कि अगर कैंपस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए रिक्रूटर के लिए इजी हो जाता है कि these CVs are from that particular institute. Then after that he is mentioned his email ID, contact details, LinkedIn profile, like that. Next please. This is the format 2. Slide पूरा क्लियर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या है, एजुकेशन, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। इसमें क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देयर 2 टाइप्स। इसमें टेबल में डिस्क्राइब कर दिया इसमें। पहले क्या था, लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिफरेंट मेंशन किया था। इसमें क्या ही इज मेंशनिंग कि वही ऊपर नेम, इंस्टीट्यूट का लोगो आ गया, देन एजुकेशन डिटेल्स ऊपर से स्टार्ट कर ली, देन वर्क प्लेस, देन उसके प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, हॉबीज नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। देन हाउ यू विल improve your chances of being कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। फर्स्ट इज डू नॉट लाई, उसमें झूठ मत लिखो। व्हाटएवर यू राइटिंग, तो इट शुड बी ट्रूथ ओनली। देखो जो एचआर वाला है ना, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे आर नॉट फूल, तो उनका डेली का वर्क एक्सपीरियंस यही होता है कि कैसे स्कैन करना है कि कौन कैंडिडेट क्या लिख रहा है। नेक्स्ट इज डॉट पैड योर रिज्यूमे। जनरली क्या होता है कि हम उसको ऐसे इरेलेवेंट, उसको बड़ा करने के लिए रिज्यूमे को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं, उसमें खुद ही फंसे होंगे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मत डालोगे जिसकी आपको क्लियर या नॉलेज नहीं है। एंड डोंट इट टू बी 2 पेजेस। जनरली जो रिज्यूमे होता है 1 to 2 पेजेस का होता है, बट अगर आपका बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, आपकी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स किए हुए हैं, तो उसको जरूरी नहीं कि आपको 1 या 2 पेज में ही वाइंड अप
extend it to 3 pages. Generally it should be 1 or 2 pages. अगर उसको एक्सटेंड करोगे तो वो रिज्यूमे की जगह सीवी बन जाएगा. This is the main difference between the CV and resume. Resume is short, generally 1 to 2 pages, and CVs it exceeds. Next is that mention your projects and internships. Don't forget to mention your projects and internships. As a fresher आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपकी internships या projects आपने किए हैं during the 4-year course that need to be mentioned. Then participate and win. आपके यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है ना, तो पार्टिसिपेट करते हो उसमें. तो उससे पार्टिसिपेशन से क्या होता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. सेकेंडली, इन केस आपने कुछ मेडल जीत ली है, पोजीशन जीत ली, यू नीड टू मेंशन ऑन योर सीवी कि टीटी के टूर्नामेंट हुआ था, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, आई टेन फर्स्ट पोजीशन, स्केट सेकंड पोजीशन, बट कोडिंग का कंपटीशन हुआ, like that. So you need to increase your participation in the institute level events. देखो institute level के events पे participation कोई फीस होती है, तो free है participate किया करो. Then favorite academic subjects. 2-3 subject आपके ऐसे होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या किसी भी कोर्स में, उसी से क्वेश्चन आएंगे. They are not expecting कि 4 साल की डिग्री में जो 30-40 सब्जेक्ट आपने स्टडी की है उसी में सारा आपको पूछा जाएगा. They will ask you कि what are your favorite subjects. तो उस पे जो 2-3 सब्जेक्ट आप बताओगे ना, उस पे फोकस करके जाना. Next is books you have read and blogs you follow. अब कोई बोलता है कि रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, तो उसमें मेंशन कर देते हो आप लोग ना चेतन भगत, ठीक है, रॉबर्ट शर्मा. तो अगर उसका अरिंदम चौधरी, तो उसका कंटेंट जो है, कंटेंट आपको पता भी होना चाहिए उसमें बुक में क्या है, आपने उसमें क्या अटेन किया है. बुक रीडिंग का तो पर्पस यही होता है ना कि इन एवरी बुक यू कैन गेट सम नॉलेज, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. यूज ऑफ पावर वर्ब्स. अब पावर वर्ब्स में क्या है, आपको जैसे took the initiative, then executed, implemented, ऐसा नहीं कि participated, implement किया आपने, attain किया, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होने चाहिए जो उसको रिज्यूमे को बढ़ा दें आपको. Then next slide please. Then personal interview. अब पर्सनल इंटरव्यू क्या होती है, एक इंटरेक्शन होती है, 10 to 15 मिनट्स का इंटरेक्शन होता है, ठीक है. उसमें either you are in a company or you will be out of the process. So next please. अभी winding up fast. So pre-interview, इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना है, do your homework. जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसकी आजकल तो वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सर्च करके जाओ ये कंपनी किसने डील करती है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है. जैसे टीसीएस है, सपोज करो टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स कौन है, इन्फोसिस है, विप्रो है, लाइक दैट, उसमें क्या स्कोप है. देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का बेस्ट वे क्या है, जब तो आप एक दूसरे को इंटरव्यू देके प्रैक्टिस कर सकते हो, जब सीधा मिरर के आगे खड़े हो जाओ, उसके आगे बोलो बार बार, रूम का डोर बंद कर लो, किसी के सामने शायद आपको शर्म आए, हॉस्टल का रूम का डोर बंद करो, उसके बाद आप क्या करो, मिरर के सामने बोलने की बार बार प्रैक्टिस करो. Then your resume और CV should be able to defend. जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो ना, तो उसको डिफेंड करना होता है आपको इंटरव्यू में. इंटरव्यू में दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन व्हाटएवर यू हैव मेंशनड इन योर रिज्यूमे. देन राइट एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. पहले अगर सोच के जाओगे ना कि मेरा तो सिलेक्शन ही होगा, तो कभी नहीं होगा. आप चेंज होके जाओ, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गोली थोड़ा मार देंगे आपको. वो भी कहीं से स्टार्ट किया ना करियर, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मारेंगे तो नहीं आपको, पिटेंगे तो नहीं. तो इसमें चिल होके प्रिपेयर होके जाओ. आपके पास हथियार अपने पूरे होने चाहिए. हथियार में इसलिए आपको अपना प्रेपरेशन करके जाना है. नेक्स्ट इज प्रॉपर ड्रेस. अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ
बहुत ज़्यादा कॉस्टली ब्रांडेड कपड़े डाल के जाने हैं, जब बहुत ही हाई फाई बन के जाना है, आइडली वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, स्काई शर्ट, ब्लू ट्राउजर, और पर्सनल ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होती है? आपके नेल्स वगैरह सारी। अदरवाइज क्या करते हैं, नेल्स अगर नहीं काट पाए ना, उसको छुपा दो, वैसे बैठोगे पर ऐसा भी ना शो करो कैसे छुपा रहे हो, राइट? सो पर्सनल ग्रूमिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्लीन योर नेल्स एंड टाइडी हेयर। ठीक है, अगर शेव करते हो तो प्रॉपर शेव। फॉर गर्ल्स, जैसे अगर रिबन वगैरह जो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कलरफुल रिबन, इट शुड बी लाइक ए प्रोफेशनल। देन नेवर अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट मत करो कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो मेरा नहीं होगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूरिंग द इंटरव्यू अराइव अर्ली। कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुंचो, अदरवाइज क्या होता है, आपको एक प्रेशर बन जाता है, भागे जाओगे तो नर्वसनेस शो कर दोगे वहां पे। सो ट्राई टू रीच 10 मिनट्स 15 मिनट्स अर्ली। उसके बाद आप यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिफोर बीइंग इन एन इंटरव्यू। देन मेक ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसके बाद क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं तान के बैठ जाना, ठीक है, यू शुड बी नॉर्मल। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। अगर ऐसे तान के बैठ जाओगे, अगर के बैठ जाओगे, तो लगेगा कि ये तो वैसे डमी फील कर रहा है, तो राइट। देन आपके हाथ पैर नहीं हिलने चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, कैंडिडेट चेयर पे बैठा होता है, ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता है, इधर तो चेयर घुमाता रहता है, बोलने वाली चेयर, इट शुड बी लाइक दैट। देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, लिसन द क्वेश्चंस केयरफुली। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको एक बार, समटाइम्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंटरव्यूअर द पैनल इज आस्किंग टू यू, तो उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क अगेन, सर कुड यू प्लीज रिपीट, लाइक दैट, इन ए वेरी प्लेजेंट वे। देन आर्टिकुलेशन, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। व्हाट आर द स्पीकिंग? सो I am told that language should not be any barrier. In case you are not comfortable in English, you can speak Hindi. और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, इतनी अच्छी भाषा है। कभी योगी नित्यानंद जी को सुना है बोलते हुए, स्पीच देते हुए? आपकी तो भाषा ऐसी ही है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मीठा गिर रहा है माउथ से। तो कभी योगी नित्यानंद जी उनसे भाषण चलाते हैं, बहुत ही अच्छी और शालीनता से बोलते हैं। Then structure your responses. जैसे sometimes they used to ask situation based questions, like तो उसको situation based task oriented questions, it can be action, it can be result oriented questions. Then articulation, उसमें ना एक तो या ऐसे एक्सप्रेशन ही शो करे वहां पे, ठीक है, यस सर, नो सर, लाइक दैट, ऐसा नहीं कि या वो थोड़ी सी ऐसी इंग्लिश हो ब्रिटिश हो या दूसरे अंग्रेजों की हिस्ट्री करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देन ड्यूरिंग द इंटरव्यू शो एंथुसियाज्म। आपने जोश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको एनफोर्स किया जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, कि ट्रेनिंग में प्लेसमेंट ऑफिसर ने भेज दिया जाओ में इंटरव्यू बैठ जाओ, तो अपनी इच्छा से जाओ उसमें। Then be honest, be truthful about your experience and skills. Whatever you are speaking, you should be able to defend. उसके बाद क्या होता है ना, काउंटर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक आपका रिप्लाई किया है ना, उसी के रिप्लाई भी पकड़ लेगा, तो you should be well prepared on that. Then handle difficult questions gracefully. ऐसा नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब आता हो। उसको क्या है ना, उसको ग्रेसफुली, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो अपने आप को सोचने का। तो केयरफुली, अगर ऐसा उल्टा आंसर देने की जगह ना, अगर नहीं आता तो फ्रैंकली एडमिट द सेम कि सर सॉरी सर, आई डोंट नो। देन उसके बाद क्या होता है, फॉलो द इंटरव्यूअर्स लीड। आपको टोन पता चलनी चाहिए। समटाइम्स वो क्या होता है ना, इनफॉर्मली पूछने लग जाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ठीक है, तो उसमें यू शुड बी, उसका टोन समझोगे कैसे पूछ रहा है वो। अगर फॉर्मल है, अगर पोलाइट है, यू शुड बी एबल टू स्पीक अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट प्लीज। देन फॉलो। सो आईटी जैसे आप अपने लेवल पे अप्लाई करते हो तो विद इन 24 आवर्स आईटी टाइम होता है कि आप ना
एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो, एक थैंक्स मेल को ड्रॉप करो रिक्रूटर को। उसमें क्या होता है, अगर ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट उसमें समटाइम्स अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आपने एक एक्सपीरियंस तो मिला ना आपको, सिलेक्शन हुई ना हुई, हर इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस तो देती है ना आपको। तो एक थैंक यू नोट आईडी दैट इज रिकमेंडेड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑफ इंटरव्यू। देन रिफ्लेक्ट ऑन द इंटरव्यू। अब आप सेल्फ एनालिसिस करो इंटरव्यू के बाद कि कहां मैं लैग करता हूं, व्हाट आर माय वीकनेस, कहां मैं किस क्वेश्चन पे अड़ गया था, किसमें मैं उसको आगे के लिए अच्छी तरह और अच्छी तरह प्रिपेयर करो। देन स्टे पेशेंट एंड पॉजिटिव, अवेट रिस्पांस। देखो आपका काम है कर्म करना, इंटरव्यू दे दिया आपने, अपनी प्रेपरेशन से दो, उसके बाद रिजल्ट आउटकम कुछ भी हो उसकी चिंता मत करो। ट्राई एंड प्रिपेयर, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट प्लीज। देन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, टॉपिक्स देखो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स कैसे यू शुड बी एबल टू स्पीक व्हेनेवर यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग। एक ना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। कितने लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत कम लोग। और कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हो? सॉरी, अच्छा द हिंदू पे मैं आता हूँ। द हिंदू इज ए गुड न्यूज़पेपर, बट एज ए स्टूडेंट मैं ये कहूंगा कि एक तो लैंग्वेज उसकी टफ है, तो यू शुड स्टार्ट। एक दूसरा सेकंड है कि कॉस्टली है। आई थिंक 10 रुपीज का है अभी, 10 जेट वाला का है। किसी टाइम हमारे टाइम पे 2.5 रुपए का होता था। तो आइडियली यू कैन गो फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, उससे स्टार्ट करके देन यू कैन इंप्रूव योर स्किल्स। अगर हिंदी का न्यूज़पेपर फॉलो करना है, राजस्थान पत्रिका इज द बेस्ट न्यूज़पेपर आई हैव सीन। उससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। अच्छा उसमें क्या होता है कि अगर टॉपिक पे आप नहीं बोल पाते ना, जीडी में कुछ ऐसा टॉपिक होता है कई बार आपको नहीं पता चलता है, कुछ नॉलेज नहीं होती, देन उसको यू शुड लिसन केयरफुली। पहले दूसरे लोगों को सुन लो, उसी से पॉइंट कलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या होता है कि जरूर कर लो जीडी में आप, बट यू शुड मस्ट कंट्रीब्यूट इन द जीडी। प्रैक्टिस करो, एंगेज इन मॉक ग्रुप डिस्कशन। अपने 5-6 लोगों का ग्रुप बना के क्लास में किसी टॉपिक पे आप क्या करते हो ना, आप स्टूडेंट लोग क्या करते हो, टाइम को किल करते हो। चिल नहीं करते, किल करते हो, वेस्ट करते हो टाइम। वेस्ट करने की जगह कुछ हेल्दी डिस्कशन किया करो, पॉलिटिकल डिस्कशन से दूर रहा करो। देखो कोई योगी जी को लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है, उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं समटाइम्स। डोंट टेक इट एज पर्सनली। जो जिसकी अच्छा बोलते हैं सो बोलते हैं, तो उसको सुन लो हर बंदे का। गॉट इट? देन नो द फॉर्मेट। साधारण जीडी में वो गाइडेंस होती है कि उसकी ऐसे ऐसे करना है आपको, यू शुड फॉलो दैट गाइडेंस। उसको फिश मार्केट क्रिएट मत करो। और जीडी में जैसे 5-7 लोगों का ग्रुप होता है, तो हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दो, डोमिनेट मत करो। किसी को ऐसे मत डोमिनेट करो कि मैं ही बोल पाता हूँ, उसको तो मैं बोलने नहीं दूंगा। लेट द अदर्स शुड स्पीक। नेक्स्ट प्लीज। देन ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन लिसन एक्टिवली। हर बंदे को ध्यान से सुनो, देन यू शुड बी एबल टू कंक्लूड कि क्या इसका आउटकम क्या है जीडी का। देन बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी को एग्रेशन नहीं शो करना, कि आपको किसी को डराने की धमकाने की कोशिश नहीं करनी ग्रुप डिस्कशन में। आपके व्यूज उससे ना मिलते हो, बट उसको ऐसे मत शो करो। इट शुड बी हेल्दी एनवायरनमेंट। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, असेंबली में डिस्कशन होता है, आजकल तो वैसे कुछ और ही होने लगे, बट इट शुड बी हेल्दी डिस्कशन। उसके बाद वो चाय तो इकट्ठे पीते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, और उनके समटाइम्स ऑपोजिट पार्टीज के ये उसके बाद रिलेशन भी होते हैं। किसी की लड़की किसी के लड़के को शादी कर देते हैं, तो उसमें वो नहीं देखते कि कांग्रेस का बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है। तो ऐसा कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। गॉट इट? देन मेक क्लियर एंड रेलेवेंट कंट्रीब्यूशंस। आपको जो भी नॉलेज है उसको क्लियरली मेंशन कीजिए। देन बी रिस्पेक्टफुल, कर्टसी शो कीजिए। हर बंदे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दीजिए। You may not be agreeing with the opinion of others, but you should pay respect to others. अगर हम किसी को सुनेंगे तो ही लोग हमें सुन पाएंगे। You should be before a good speaker, you should be an active listener. Then demonstrate leadership and teamwork. Then stay on topic. Topic से मत भटको। टॉपिक तो दिया है आपको इंडियन इकोनॉमी का जीडी में, आप किसी और टॉपिक पे जा रहे हो, तो उस पे टॉपिक पे you need to stay on a particular topic. Next please.
समराइज कैसे करोगे? जीडी में ना एक हमेशा पेन पेपर लेके जाना है, यू नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट बट अदर आर स्पीकिंग बट रेलेवेंट पॉइंट ही नोट करने हैं। उसके बाद एंड में समराइज अगर पहले नहीं बोल पाए ना जीडी में ग्रुप डिस्कशन में, आपको लगता है मैं तो बोल ही नहीं पाया, तो इंक्लूड कर दो। जहाँ ऐसा होता है कि जो मॉडरेटर होता है ना, जो जीडी में बैठा होता है, आपको मैनेज कर रहा होता है, वो कहता है कि कुड यू प्लीज समराइज। जैसे ये बच्चा है, सपोज करो जीडी में नहीं बोल पाया, तो उसको बोलेंगे कुड यू प्लीज समराइज। समराइज तब कर पाओगे अगर आपने पॉइंट्स नोट किए हैं। सो नोट तब कर पाओगे व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू अदर्स केयरफुली। देन रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। उसके बाद अपने आप पे सोचो, सेल्फ असेसमेंट करो कि जीडी में मैं क्यों नहीं बोल पाया। क्या मेरे को डोमेन की नॉलेज नहीं थी, उस टॉपिक की नॉलेज नहीं थी, तो क्यों नहीं थी? जैसे मैंने कहा है कि देखो जनरल अवेयरनेस हर किसी को चाहिए। जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर रीड जरूर करो, मोबाइल पे टाइम किल मत करो, ठीक है। हमारी तो एजुकेशन के बाद ये स्पेक्स लगी है ना, ये फाइनल ईयर में जाके लगी है। आजकल तो स्पेक्स आपके लग जाती है ना, मोबाइल पे लगे रहते हो। तो यू शुड एंजॉय योर टाइम विद नेचर। आपका तो एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो फील्ड में रहा करो। देन सीक फीडबैक। जो मॉडरेटर होता है ना, जीडी मैनेज कर रहा है, यू कैन आस्क द फीडबैक, सर कुड यू प्लीज गिव मी फीडबैक, माय फीडबैक अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। और अपने फ्रेंड से आप फीडबैक ले सकते हो। नेक्स्ट सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइक आई एम सो आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, लाइक दैट। एक सीक्वेंस होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग से करो या करंट से करो। देन केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। समटाइम्स आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आप उसमें क्या करोगे। तो उसमें क्या करो, थिंक, स्ट्रक्चर एंड स्पीक। थोड़ा सोचो, उसको बनाओ, फिर जवाब दो। डोंट रश इन जीडी एंड पीआई, भागो मत। लिसन एंड कंप्लीट। ही इज द ही टू पैनल। अगर उसको पैनल को सुन लो पहले, बट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, अगर सुनोगे ध्यान से तो आंसर भी प्रॉपर्ली नहीं दे पाओगे। डिसएग्री ग्रेसफुली। इन केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो, सॉरी सर आई डोंट नो। सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर उस पर फोकस करना है कि कैसे बैठना, कैसे है रीडिंग में। आपको ऐसे ऐसे नहीं करते रहना, ठीक है। अब टाइम को शॉर्टेज है, अदरवाइज वी मस्ट हैव गिवन डेमो। दैट टोन शुड बी लाउड एंड क्लियर। आपकी जो टोन है ना, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। सुननी चाहिए इंटरव्यू पैनल को। उसको ऐसा नहीं कि बार-बार, आजकल क्या पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को ना, कि इवन सम पीपल यूज्ड टू स्पीक कि उसको पता नहीं चलता कि व्हाट दे आर स्पीकिंग। इतने डिस्टेंस पे भी अगर सुनाई नहीं देता, देन यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। देन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इफ यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स एंड ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है ना कि पैनल में होता है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, तो उसको यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। उसमें सैलरी का क्वेश्चन नहीं पूछना कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी पहले क्लियर होती है आपको कि कितनी उन्होंने मेंशन की होती है एडवर्टाइजमेंट में। देन गो विद द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उससे पहले प्रैक्टिस करो, लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड टू स्पेंड। नेवर इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि माय सेल्फ हुई, ऑलवेज थिंक आई एम टुडे, लाइक दैट। देन स्माइल प्लेजेंट। इंटरव्यू में देखो चेहरा तभी अच्छा लगता है ना, अगर फोटो खिंचवाते हैं तो बोलता है ना कि स्माइल प्लीज। रोते हुए चेहरे किसी को अच्छे नहीं लगते, तो एक प्लेजेंट स्माइल, ऐसा नहीं कि हंसते रहना वहां पे, बट you should set with a pleasant smile. Then never ask for more CTC or salary. Salary और CTC का डिस्कशन मत करो. As a fresher, you look beyond the salary. पहली आपकी एफर्ट होनी चाहिए कि वर्क एक्स ले लो, अच्छी जॉब ले लो। सैलरी पैसा मैटर नहीं करती, मनी कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती। Then always be positive. हमेशा पॉजिटिव होकर चलो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा सिलेक्शन, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना। चार लोग ये बोलेंगे तुम्हारा तो सिलेक्शन ही हुआ, चार लोग हंस लेंगे, लेट देम, उनको खुशी मिल गई ना उसके, उसको भी आप पॉजिटिव लोगे, मेरे पे किसी को हंस के खुशी मिल गई,
रोया तो नहीं ना आपके कारण, हंसा ही है ना आपके कारण। नेक्स्ट प्लीज। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग, उसके लिए प्रैक्टिस करो, फोकस फॉर योर स्पीकर, अवॉइड इंटरप्टिंग, बीच में इंटरप्ट मत करो। देन फीडबैक, सीक फीडबैक ऑन योर लिसनिंग स्किल्स फ्रॉम योर कलीग्स और मेंटर्स। आपका क्लासमेट है जो बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको, देखो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो आपका मजाक ना उड़ाए बट आपको पॉजिटिव फीडबैक दे, जिसको आप इंप्रूव कर पाओ। देन इफेक्टिव स्पीकिंग। स्पीकिंग इफेक्टिव कब होगी? जब क्लैरिटी होगी आपके, व्हाटएवर यू स्पीकिंग इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। देन पब्लिक स्पीकिंग, so you can improve your skills by joining these Toastmasters or other public speaking courses to improve your confidence and presentation skills. Next, body language. Pay attention to your posture, eye contact, facial expressions. अच्छा लीडर कौन होता है? जो पब्लिक के साथ आई कॉन्टैक्ट कर पाता है। If I am speaking but my eyes are in different direction, तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा के साथ मेरी तरफ तो अटेंशन ही दे रहे। Then observation, observe others and practice interpreting non-verbal cues. अच्छा किसी का, हर किसी से ना पॉजिटिव सीखने की कोशिश करो। किसी इंसान में 100 बुराइयां हो सकती हैं बट एक ना एक अच्छी मिलती है ना, आप अच्छी चीज सीख लो। जैसे रामायण में था ना कि भगवान राम ने बोला था कि रावण से भी कुछ अच्छी शिक्षा ले लो। नेक्स्ट प्लीज। Then things all must do in life. Never compromise your ethics. It can be personal ethics or professional ethics. Sometimes ऐसे circumstances आते हैं जॉब में, आपको enforce किया जाता है, जो आपको बोलते हैं कि आपको इतना बेनिफिट दे देंगे, कंपनी ले बाहर में, सोचो कि मेरे को तो फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है ना, ले लो। कभी भी एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज मत करो। एक बार आपका एथिक्स आपने लूज कर दिया ना, तो आपकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम की प्रायोरिटी रहती है आपको कि इस चीज को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, इट नीड टू बी फिनिश्ड फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा देखो आपको 4 साल में डिग्री कोर्स भी कंप्लीट करना है, यू नीड टू स्किल द न्यू नॉलेज, यू नीड टू अटेन योर जॉब और हेल्थ फिटनेस में भी, एवरीथिंग यू शुड टेक केयर अबाउट दैट। देन सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि रूटीन होना चाहिए आपका, कि सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना है, उसके बाद मैंने वॉक पे जाना है, इतना टाइम मैंने स्टडीज पे लगाना है, लाइक दैट। इतना टाइम मैंने हर महीने एक नया कोर्स ऐड करना है अपने इसमें। सो कोर्सेज ऐड करने के लिए कोर्सेरा एंड अदर्स, लिंक्डइन एंड अदर्स, उसमें ना फ्री कोर्सेज होते हैं। स्वयं पोर्टल इज हियर, यू कैन ऐड न्यू कोर्सेज एंड यू विल सी। देन सेल्फ मोटिवेशन। आपको कोई मोटिवेशन नहीं करने आएगा, लोग तो आपको डीमोटिवेट करेंगे, अरे तेरा कोई कुछ नहीं बन सकता, लाइक दैट। डीमोटिवेट ना मत हो किसी से। देन अवेल द अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर लो। ये मत सोचो कि इसका तो 10 लाख का पैकेज लग गया, मेरा तो 5 ही मिल रहा है, जो 5 मिलता है वो तो ले लो ना एक बार। देन इंक्रीज सोशल नेटवर्क। अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, अच्छे फ्रेंड्स ऐड करो। नेक्स्ट प्लीज। टू मेक लाइफ बेटर, नॉट मेक कंपैरिजन विद अदर्स। जनरली दुखी कब होते हैं? हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इसकी तो अच्छी बड़ी जॉब लगी, मैं तो मेहनत करता रह गया, मेरी तो लगी। तो कंपैरिजन करने से क्या होता है? दुखी होता है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने यही कहा कि डोंट मेक कंपैरिजन विद अदर्स, इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्स्ट्रा कोर एक्टिविटीज। देखो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो। स्पेंड टाइम विद नेचर। नेचर जो है बहुत कुछ सिखाती है। आपका मूड स्विंग होता है तो यू शुड मस्ट स्पेंड टाइम विद नेचर। कुदरत की हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कुदरत बोलती है जो नदी का पानी है ना, एक बार बह गया वो वापस नहीं आएगा, राइट? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते जाते रहते हैं। किसी की लाइफ पूरी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ना ये पर्टिकुलर बंदा तो खुशी है, इसको तो दुख है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। Then care yourself but don't be selfish. एक अच्छी हॉबी डेवलप करो,
एक हॉबी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपका, उससे क्या होता है आपका मन चेंज होता है और सीख भी लेते हैं कुछ। डोंट इंडल्ज इन अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। जैसे मैंने बोला किसी के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में मतलब, उससे क्या होता है टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होती है और आपका माइंड भी वॉश होता है। तो पेशेंस, लाइफ में हमेशा पेशेंस रख के चलो। जो आपको मिलना है मिल के रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। उसके लिए एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। Respect your parents. Last slide. तुम्हारा एक कार्य है, कर्म करने में है, फल की इच्छा मत करो। अब दो लाइनें में, एक लाइन में याद रखना कि तीन चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो कभी वापस नहीं आती। एक तो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स अपनी लाइफ आपको दे देते हैं, ठीक है, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करो। देन यूथफुलनेस, आपकी जो जवानी है ना उसको यूटिलाइज करो। यही टाइम होता है कि हार्डवर्क करने का, यही टाइम होता है आप कुछ गेन कर पाओगे। तो इस जो है, देन थर्ड इज आपका जो ब्यूटी है, जो चार्म है, या किसी में जाके अपने आपको शक्ल को चेंज कर लोगे ना, वो तो वही रहनी है, बट आपने जो खूबी है अब मैं दो लाइनें आपको बेसिकली दो लाइनें आपको इसमें जो मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, वो आपको गा के सुनाता हूं। इसका पहले अर्थ सुन लो। जैसे नदी का बहाव होता है ना, जो वो वापस नहीं आता, एक बार पानी जो चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। सिमिलरली आपका जो बचपन है, जवानी है, वो वापस नहीं आएगी। बुजुर्ग अवस्था में गया तो लाठी से चलना पड़ता है, एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इसको मैं दो लाइन गा के सुनाता हूं। बेड़ी दादियां कुड़ियां सैना रल के, जो पानी अज पतनो लंघ गया, उन्हें फिर नहीं आना पल के। सच सियाने बोल गए, रदाई जापे तेन रंग नहीं लभने, बीबा हुस्न जवानी ते मापे। तो ये तीन चीजें हैं ना, हुस्न, जवानी और आपके पेरेंट्स, वो वापस की चीजों को संभाल लोगे ना, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक्स। इतना था, तो फिर कभी मुलाकात। Thank you very much, sir, for very informative and valuable lecture for them, which they will get the advantage of it in future, in final year, probably next year. Some third year students are there. So kind of you for delivering a very nice lecture. I would like to invite Director Training Placement, Joint Director Training Placement, to felicitate both the speakers who has created an impact on our students in a very well manner. I am very much thankful to them. Shreya, I would like to invite the Shreya to kindly felicitate the different speakers for delivering the talks very nicely. I would like to request please to make a memento as a token of respect for them. For both of them, I would like to request our director and after that I would like to propose a vote of thanks for both the speakers along with our director, joint director and
organizers who has taken pain to accomplish this task. So before going into deep, I would like to say both the speakers has done very wonderful job as compared to previous talks also. I am very much thankful to Sri Puneet Garg, Training and Placement Officer, IIT Jodhpur, who has given so many insights, even which is very much useful for us also, as it is useful in IITs and all. He has a very wide experience to just preparing the students to get a good job. Thank you very much, sir, for inviting. I am traveling so much long distance. Thank you very much, sir. So kind of you. And I am also thankful to Sri Lokman Singh Sahab, who is always ready for you in Sardar Vallabhbhai Patel. Even you will not be knowing about him. He is charging very high in corporate sector, but he is accepting the offer to come over here in a very less amount. We can't say. We feel ashamed to say the amount. He is always ready for you. Anytime if you want to call him, he will come after 1 month, after 2 months. So I am very much thankful to you, sir, for giving very deep insights of the motivation. Dr. Singer, sir, who has always given wholehearted support for conducting this kind of training program whenever we have planned anything. Similarly, our joint director is also ready. Anytime if we are saying that we have to organize this program, he is with us. So I am very much thankful to both the directors, all the teams of Directorate of Training and Placement, and also very much thankful to you all who has cooperated us, and you are here since more than 3.5 hours, and you have given a wonderful introduction of yours to cooperate the Directorate of Training and Placement as compared to previous talks and all. So I am very much thankful to you all, and I am thankful to Honorable Vice Chancellor who has granted a sanction to conduct this program. Along with that, all the staff members who have cooperated here, my students, I can't name, there are 12 students with me working for conducting this program since last 3-4 days. I am very much thankful to one and all who is present over here. Thank you very much. I will finish my talk with 2 lines, which is the conclusion of this talks, both the talks. So kindly listen that carefully. That is the gist of the today's talk. So that lines are not made by me, that are available in so many places that you can say it's a शेरो शायरी टाइप. हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार न करो, जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो, बेवजह कीमती वक्त को बेकार न करो. Both the lectures and just both the lectures. I just some points want to raise by Dr. Karim please. सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इवन IITs में हम स्पीकर बुलाते हैं तो इतना स्टेप नहीं होता. लास्ट वीक हमने एक हैदराबाद से स्पीकर बुलाया, बहुत अच्छा स्पीकर था. Then we were able to assemble the students in such a numbers. So बहुत ही I express sincere gratitude to all of you for sparing your valuable time with us. Anyone who wants to interact with me, you can either get my details from DB Singh sir. तो किसी भी टाइम आपको कोई जरूरत है, मोबाइल नंबर है मेरा, then email ID is there, LinkedIn, Facebook, you can interact with me anytime, any student. Thank you.